کہ اس کنال کو فینسنگ کی جائے، کیونکہ سالہ سال اس میں کہیں جانیں چلی گئی ہیں۔ ہم آدمی کو یہ لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن آج کے بعد جو بھی جان ہم اس کنال میں گنوائیں گے اس کا جرمانہ یہی ڈپارٹمنٹ دے گا، کیونکہ ان کی کنال ہے، یہ کام ان کا ہے، اس کی سیفٹی رکھنا بھی انہیں کا۔ آگے گورنمنٹ ہماری توجہ دے نہیں رہا ہے، ہم تو ویسے ہی غریب ہے، تو ویسے بھی غریب کر کے رکھا ہے گورنمنٹ نے۔ بس بات ہے کہ ہم نے ہر ایک دروازہ کھٹکایا ہے، اب ہمارا لاسٹ دروازہ ہے جو کورٹ کا ہے۔ السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ کا میزبان سعید نزاکت خلیفہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ دیکھ رہے ہیں پکار نیوز نیٹ ورک کی خاص پیشکش۔ اس ٹائم موجود ہیں سینٹرل کشمیر گاندربل میں، اور جہاں پہ میں موجود ہوں، یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں ویژولز میں، یہ بجلی کنال ہے جو کہ یہاں پہ سینٹرل کشمیر گاندربل کے تحصیل کنگن کے برن بگ ایریا میں پڑتی ہے، جہاں پہ ہم موجود ہیں۔ ہمارے یہاں پہ آنے کا مقصد، اور یہاں پہ جو لوگ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جمع ہوئے ہیں، یہاں پہ پچھلے ہی دنوں ایک حادثہ پیش آیا، ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ اس کنال میں ڈوب کے مر گیا، اور اس کے بعد ہی یہاں کے لوگ انتظامیہ سے یہ مانگ کر رہے تھے کہ اس کنال کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پختہ طور پہ انتظامات کیے جائیں، اور یہاں پہ جو لوگوں کی مشکلات ہیں ان کا جلد سے جلد ازالہ کیا جائے۔ اس ضمن میں آج پھر سے لوگ جمع ہوئے ہیں، کیونکہ یہ پہلا حادثہ نہیں ہے کہ یہاں پہ بجلی کنال میں کوئی مرا ہو۔ یہاں سے آگے ایک اور اس کے ساتھ دوسرا جو حصہ ہے بجلی کنال کا، وہاں پہ بھی بچے جب آتے ہیں پراپر فینسنگ نہ ہونے کے کارن وہ اس کنال کا شکار بنتے ہیں، کیونکہ انسانی زندگیاں آپ نے کم ہی دیکھی ہوں گی ضائع ہوتے ہوئے، لیکن یہ جو بجلی کنال ہے یہ انسانی زندگیاں لے کے اس میں بہاؤ ہوتی ہیں۔ ہر سال کوئی نہ کوئی جان اس میں چلی جاتی ہے اس بجلی کنال میں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جب تک اس بجلی کنال میں ایک جان نہ چلی جائے کسی سال، تب تک اس بجلی کنال کا چلنا ناممکن ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پیچھے بہت سارے لوگ موجود ہیں، اور یہ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اسی لیے کہ ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ کہ انتظامیہ گورنمنٹ کی طرف سے، اور خاص کر ان کا پیغام جو ہے وہ انتظامیہ کی طرف ہے کہ ان کے جو مشکلات ہیں ان کا ازالہ کیا جائے۔ میں چلتا ہوں سیدھا پہلے جو پچھلے دنوں جو واقعہ پیش آیا، یہ ان کے والد ہیں، والد محترم ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے یہ حادثہ پیش آیا، کیونکہ انہی کا دل جانتا ہے کہ جن کا ایک بچہ جو ہے انہوں نے اپنا جو دل کا ٹکڑا تھا وہ کھویا ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کا نام جاننا چاہوں گا۔ محمد اسماعیل جاگل برن بک کا رہنے والا ہوں۔ 12 تاریخ کو میرا بچہ 2 بجے گھر سے نکلا، میں گھر میں نہیں تھا۔ میں شام کو واپس جب آیا تو میں نے بچے کی تلاش کی، تو بچہ شام تک واپس نہیں آیا، تو پھر ہم نے بچے کی تلاش شروع کی۔ کرتے کرتے ہم نے جا کر مسجد میں اعلان کروایا رات کے 11 بجے، تو ایک لڑکے نے وہاں اس کے جوتے کنال پر دیکھے، تو پھر رات کے 12 بجے ہم وہاں آئے، آ کر ہم نے پولیس کو اطلاع دی، پولیس بھی پہنچی، لیکن رات کو ہم بچے کی لاش وہاں سے نہیں نکال سکے کیونکہ کنال میں پانی بہت تھا۔ تو صبح جب انہوں نے ڈپارٹمنٹ والوں نے پانی نکالا تو پھر پولیس بھی آ گئی، تو اس بچے کی لاش اس کنال میں ہم نے پائی۔ جناب اس کنال میں بہت جانیں گئی ہیں، کہیں لوگوں کا مال بھی گیا ہے۔ کتنے سال کا تھا آپ کا بچہ جو اس کنال میں چلا گیا؟ 14 سال کا جناب۔ جی ہاں، تو پھر ہم نے اس کنال سے اس کی لاش پائی جناب۔ تو ہماری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کنال کو فینسنگ کی جائے، کیونکہ سالہ سال اس میں کہیں جانیں چلی گئی ہیں۔ جی تو جب آپ نے یہ خبر سنی آپ کا بچہ کنال میں چلا گیا، تو اس کے بعد کتنا خوف یہاں پہ علاقے میں تھا یا آپ کے گھر میں؟ بہت جناب، بہت خوف تھا جناب۔ تو اب آپ کیا چاہتے کہ انتظامیہ سے کیا؟ ہم انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کنال کی فینسنگ کی جائے تاکہ لوگوں کا جانی اور مالی نقصان نہ ہو۔ جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ والد محترم ان کے، جن کی جو 14 سالہ بچہ جو اس کنال میں ڈوب کے مر گیا۔ تو اب یہاں پہ کچھ اور بھی لوگ ہیں، ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے، کچھ باقی بھی یہاں پہ سوشل ورکر بھی ہیں، باقی یہاں کے لوکل ریزیڈنٹ بھی ہیں۔ جی سب سے پہلے آپ کا نام جاننا چاہوں گا۔ جی میرا نام اشفاق احمد ہے، میں یہیں کا رہنے والا ہوں۔ کچھ سمے پہلے جو نیوز پھیلی تھی کہ ایک برنبگ میں ایک 14 سال کا لڑکا جو کہ پانی میں ڈوب کے مر گیا، دیکھیے یہ صرف ایک نیوز نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی سارے حادثے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم 2000 سے بات کریں تو میں آپ کو تھوڑا بہت بولنا چاہوں، 2003 میں بھی 2 آدمی گئے، 2005 میں بھی 1 آدمی گیا، 2009 میں بھی 3 مہیلائیں صرف عورتیں گئی تھی، 2011 میں ایک لڑکا جوان لڑکا گیا تھا، اور اسی طرح 2015 میں بھی 2، اسی طرح ابھی تک یہاں تک جو ہے تقریباً ہم نے کئی ساری جانیں جو ہے اس میں ہم نے گنوائی ہے۔ دیکھیے ہماری ریکویسٹ یہ ہے،
हमने उस वक्त अपनी कुर्बानी दी, हमने इन डिपार्टमेंट वालों को अपनी ज़मीनें दे दी, उन्होंने कनाल बनाई जिससे कि आवाम को बहुत सारा फ़ायदा है। लेकिन आवाम को फ़ायदा है लेकिन इससे हमें नुकसान है। देखिए इस वक्त हम उसी पॉइंट पे मौजूद है जहाँ पर ये लड़का गया था। आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कोई ऐसा प्रोटेक्शन है क्या, कोई सेफ्टी है? अगर यहाँ पे कोई, मैंने आपको अभी जानू की बताई, मैंने आपको ये नहीं कहा कि इसमें कितने मवेशी गए हैं, जो कि अगर 3 गायें जाएंगी तो वो भी 1.5-2 लाख रुपए होता है। इसी तरह हम लोग हर साल कोई ना कोई चीज़ हम गवाते। तो हमने कई बार कहा, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, हमने कई सारे मीडिया भी आए थे, हमने इंटरव्यूज़ दिए थे कि मेहरबानी करके आप कोई ऐसा सिस्टम बनाइए, इस पर फेंसिंग दीजिए। आपके पास इतने सारे आइडियाज़ है, कोई ऐसा आइडिया लगाइए कि इस पर हमें कौन सा ऐसा कोई डिवाइस, कोई ऐसी चीज़ हमें करनी चाहिए जिससे कि लोगों की जानें बचे। बिजली महकमे इस बारे में उनसे रब्ता हुआ, उनका क्या कहना था जब आप उनसे मिले या आपने अपनी दरख्वास्त जो उनके पास डाली? देखिए ऐसा है कि उनको अभी बहुत सारा टेंशन उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ये सिर्फ एक मसला नहीं है। अभी देखिए आप बारनाबुग की बात आप करेंगे, वहाँ पे एक मोहल्ला इसी की वजह से पानी की ज़द में आ रहा है, क्योंकि इस कनाल का वहाँ पे भी लीकेज है। तो हमने उन पीडीटी डिपार्टमेंट से भी गुजारिश की, वो भी, लेकिन अभी तक हमारा कोई एक्शन नहीं हुआ। देखिए हम तब कहेंगे हमारे साथ इंसाफ हो जब कोई काम होगा। अभी देखिए 3 साल पहले ये पानी बंद किया गया है कनाल का। ये एक कनाल 1 घंटे के अंदर 32 से 35 लाख रुपए जो है देती है डिपार्टमेंट को। अभी देखिए 3 साल से ये बंद है, तो ये रेवेन्यू को ही नुकसान हो रहा है, रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से गाँव को भी नुकसान हो रहा है। वहाँ पे हमें बताया नहीं जा रहा है कि हम कनाल का काम करें या ना करें। अभी तो रिसेंटली एक काम इसका जो हुआ है, सैंक्शन हुआ है, वो भी अभी तक नहीं हो रहा है। तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे हमारी जानें बचे। देखिए अब ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी यहाँ से आएगा वो इसके बीच में चला जाएगा, क्योंकि आप खुद विजुअल्स देख सकते हैं यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है आप सेफ्टी इस पे लगाइए ताकि हमारी जानें बच जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और भी यहाँ हम बात करने की कोशिश करेंगे, और भी यहाँ पीछे साथी हैं, इनसे बात करने की। जी आपका नाम जानने की कोशिश करेंगे। जी मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान। जी आप यहीं के रहने वाले? मैं बारनाबुग का रहने वाला हूँ। यहाँ तो बहुत सालों से आदमी जा रहे हैं, बस गवर्नमेंट को बोलते हैं कि जो कनाल वाले हैं उनको बोलते हैं यहाँ कोई काम करो, वो बोलते हैं हाँ हमारे में अलॉट हो गया, हम काम करते हैं, करते कोई भी नहीं है। आगे गवर्नमेंट हमारी तवज्जो दे नहीं रहा है। हम तो वैसे ही गरीब है, तो वैसे भी गरीब करके रखा है गवर्नमेंट ने, बस। और आपका क्या मुतालबा आज यहाँ जमा होने का? आपका मुतालबा क्या है? रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमें ये कनाल को कोई पाबंदी करे, कोई तार लगाए, कुछ करे, कोई जान न जाए अंदर। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये अर्ज़ करते हैं कि कोई ना कोई हल निकाल के ये कनाल बंद करे। इस टाइम बिजली कनाल के दूसरी साइड में है, जहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं विजुअल्स में। यहाँ पे ये डैम है जो बिजली कनाल के लिए बनाई गई थी, जहाँ पे मुकम्मल तौर पे पानी जमा किया जाता है, उसके बाद छोड़ा जाता है। लेकिन शायद यहाँ पे जो डेवलपमेंट की कमी है यहाँ पे, और जो काम है वो काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ है, उसकी वजह से ये पीछे जो आप देख सकते हैं पूरी जो कनाल है, कनाल के पीछे जो डैम है और इसकी जो बाउंड्री वाल्स हैं सारी डैमेज हो चुकी हैं। आप पीछे विजुअल्स में देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर। और यहाँ पे भी लोग जमा हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये जो बिजली कनाल की डैम है खेल का मैदान बन चुका है, क्योंकि इस कदर से पीछे जहाँ पे हालत इस कदर की है कि खुला मैदान है, कोई भी आता है और उसके बाद अचानक से हादसा पेश आता है। तो यहाँ पे और भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ समाजी कारकुन भी हैं जो अक्सर बुलाते रहते हैं हमें। इनसे आपका सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम कालिस मकसूद गुज्जर है, मैं पोशकर का रहने वाला हूँ। सर, जो कि ये बिजली कनाल के बारे में हमारे पहले भी बुजुर्गों ने बात की, बच्चे के बाप ने बात की। सर ये तो पहली बात तो हमारी अपनी गलती है, जो कि अभी आप आए यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। मैं बारनाबुग से कहना चाहता हूँ, जो क्लोज गांव है, नाड़ियाँ पत्ती है, जिससे कहता हूँ ये क्लोज गांव है, बामलन क्लोज गांव है। यहाँ पे ना आने दो, ना अपनों को आने दो, ना बाहर के आने दो, क्योंकि यहाँ पे भी पानी, अब ठंड का मौसम चल रहा है, छोटा सा पानी है, बच्चा कोई चला गया तो सर्दी से मार सकता है। ऐसे लाश हम अपनी लाशें खुद दे रहे हैं। पहले तो गवर्नमेंट की गलतियाँ उतनी नहीं है जितनी हमारी। आए दिन यहाँ से जो हादसात पेश आते हैं, किसी न किसी की जान चली जाती है यहाँ बिजली कनाल की वजह से। तो क्या लगता है आपको, जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार किसको समझते हैं आप? जिम्मेवार तो मैं 50-50 समझता हूँ। 50% हमारी अपनी गलती है, 50% गवर्नमेंट की गलती है। गवर्नमेंट की ये गलती है, बहुत बड़ी गलती है गवर्नमेंट की भी। गवर्नमेंट ने आधी फेंसिंग दी है जो कि बारनाबुग गाँव के पीछे लगी है। वो फेंसिंग का आधा काम हुआ कुछ फुट पे, तो मुकम्मल तौर पे नहीं हो सका। कहने चाहते हमारे जो यहाँ के ठेकेदार साहब है, सुनने के मुताबिक ये ठेकेदार को काम टंडल से हुआ है पास, और हमारे ठेकेदार साहब नहीं लगा रहे हैं, आधा काम किया आधा छोड़ दिया है। और यही मैं बारनाबुग और पोशकर और बामलन से यही अपील करना चाहता हूँ कि
माफ आपका भी कहीं ना कहीं मानना है कि लोगों को और एडमिनिस्ट्रेशन को मिल के इसकी तरफ तवज्जो देनी जी होगी। सर, ये पब्लिक जी। डीलिंग है। पब्लिक डीलिंग तो बड़े प्यार से मीठी बातों में हल होती है। पीछे लोग रहते हैं, घर हैं लोगों के, आपके पीछे घर हैं यहाँ पे और मुकम्मल तौर पे जो ये हमारा मकान है जी, ये हमारे मकान को बहुत खतरा है। देखो आप देख रहे हैं सामने, जी। ये ज़मीन खिसक रही है। जी हर समझो जिस दिन बारिश ज़्यादा होती है ज़मीन खिंचे, सालों साल खिंचे। अब ये आते हैं डिपार्टमेंट में, लोग भी आते हैं देख कर चले जाते हैं। आप इनको दरखास्त नहीं करते एडमिनिस्ट्रेशन के पास? ये बहुत नहीं दफ़ा लेते? जनाब किया, बहुत दफ़ा, हमारे सुनने को कोई नहीं आता है। जी, अब क्या इंतज़ामिया से, एलजी इंतज़ामिया से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील है आपकी? हमारी बहुत अपील है कि यहाँ इसका कुछ थोड़ा डिफरेंस बना जाए, कुछ दीवार बना जाए, ये ताकि ये ज़मीन न खिंच के हमारा मकान समझो महफूज रह जाए। और बाकी हमारी है कि यहाँ की जाली लग जाए इसके कनाल के इधर उधर, हमारे बच्चे यहाँ चलते फिरते हैं। बहुत सालों से यहाँ बहुत नुकसान हुआ है, बहुत हमारी नज़रों में यहाँ लाशें निकाली जाती हैं। बड़ी अफसोस की बात है, कसम से कहता हूँ, बड़ी अफसोस की बात है जी। जब हमने यहाँ के लोगों से बात की, यहाँ के कुछ लोकल रेजिडेंट भी थे, उनसे भी बात की, बिजली कनाल के एक तरफ भी हम गए, बिजली कनाल के दूसरी तरफ भी गए, क्योंकि यहाँ पे बिजली कनाल का जो सिलसिला है वो यहाँ पे पावर डिपार्टमेंट की बिजली कनाल यहाँ से चलती है और सामने एक तरफ डैम है, दूसरी तरफ बिजली कनाल जाती है और पीछे भी गांव है, नीचे भी गांव है। मतलब एक बस्ती के बीच में एक बिजली कनाल है और बिजली कनाल भी बहुत नामुकम्मल तौर पर यहाँ पर पड़ी हुई है और शायद यहाँ पे बिजली महकमा इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता और लोगों ने भी यही इल्ज़ामात लगाए हैं कि यहाँ पे हमारी सुनी नहीं जाती और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई अमल में लाई जाए। और लोगों का सीधे तौर पे ये कहना है कि कोई ना कोई हल निकाल के यहाँ पे कम से कम यहाँ पे फेंसिंग की जाए ताकि जो जाने यहाँ पे जाती हैं बिजली कनाल में वो ना जाएँ। सईद नज़ाकत खलीफा विद कैमरा मैन आदिल मुश्ताक के साथ गांदरबल से पुकार की खास रिपोर्ट।